अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा लेक्चर है वीडियो लेक्चर 16 और इसके अंदर हम कर रहे हैं सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट्स। और इसके अंदर थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा फार्मूलेस की, बट एक्चुअली आई विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. Example problem 8.5, which is already solved in your book, but I will be explaining it partially. Then I will be doing a practice problem 8.5 and then practice problem 8.6. अगेन वही वाली बात कि आपने अपने हाथ से करना है इसको, इन प्रॉब्लम्स को. अच्छा, प्रॉब्लम्स बहुत आसान है अगर आप इसकी टेक्निक समझ जाएं तो. थोड़ी सी कैलकुलेशंस लंबी हैं और थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा आपको फॉर गेटिंग द प्रैक्टिस, एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट. सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो ये तो एक प्रोवर्ब है, तो है, इसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते. अब रमज़ान का टाइम है, इसके अंदर आप प्रैक्टिस कर पाते हैं नहीं कर पाते, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. देखें, वक्त निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए, और हमारा क्विज़ भी है. सो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, ये पैरेलल सोर्स फ्री पैरेलल सर्किट है. इसका मतलब है कि इसके अंदर आई नॉट और वी नॉट कैपेसिटर के अक्रॉस और आई नॉट थ्रू द इंडक्टर बाई सम मीन्स टाइम टी लेस देन ज़ीरो से इसके अंदर इस्टेब्लिश्ड है. आई नॉट भी गुजर रहा है, वी नॉट भी अक्रॉस द कैपेसिटर है. और सर्किट सॉल्व करते वक्त हम स्विचिंग अरेंजमेंट वगैरह से इसके वोल्टेजेस को डेवलप कर लेंगे. ये वी नॉट और आई नॉट कहाँ से आया, लेकिन अभी तो सोर्स फ्री सर्किट को डिस्कस करने के लिए वी आर जस्ट टेकिंग इट एज इट इज़, दैट आई नॉट इज़ पासिंग थ्रू द इंडक्टर एंड वी नॉट इज़ अक्रॉस the capacitor. So with this assumption, we say that this I naught is the time current at time t is equal to 0, that is I naught time t is equal to 0. This is shown here, and that is given by whatever was the voltage on the inductor from infinity to time t is equal to 0. So we will be integrating it. That's how we will get the initial condition. V naught is just the voltage across the capacitor at that time when the t was 0. So capacitor voltage and the inductor current cannot change abruptly. So the voltage will remain same for time t 0 minus and time t 0 plus. So just applying a KCL on upper node, we just said that this is going to be the equation by applying the KCL. This is the current that is passing through the resistor. This is the current through the inductor, and this now has been just taken as the limits are from minus infinity to t, because right now we are just not applying the initial the limits, and we will just keep it as we will not put the remove the constant of integration, because we will just keep it t. Next, the current through the capacitor is given by c dv by dt. Ic is equal to c dv by dt. That's why. So simplifying this equation and then just assuming the solution, so we reach the characteristic equation just like we had reached in series circuit. Right. So the roots of the equation are just as it is. It's a quadratic equation. So this is now alpha. Alpha has changed. Now the value of the alpha is 1 upon 2 RC in parallel circuits, and in series circuit it was R upon 2L. Omega naught remains same. This is damping factor, and this is natural frequency, omega natural frequency, or undamped frequency. Right. So depending on the values, the different cases, alpha is big, greater than omega, or alpha is equal to omega, or alpha is less than omega. There are three cases, that is underdamped, overdamped, critical damped, and underdamped. The stabilizing time for the critical damped is least. Undamped case a bit longer, means there is oscillations and ringing. These oscillations are called ringing. So one more thing that is very very important, I just forgot to mention that where I should just take you where. Yes, this characteristic equation is for the variable of the voltage across the capacitor. In the last case, in the series circuit, we had taken the main variable as the current through the inductor, but now we will be solving this circuit for voltage across the capacitor. That's the reason being, that is, this is a parallel circuit and the voltage across all these elements, circuit elements, are same,
and this is exactly the case for the current in series circuit. That is the current through all the elements in series circuit is same. So once we solve this V naught, we can solve for other variables also. So if we just want to find out IC, then that is given by C dV by dt, and if we just want to find out IL, so we can just do it by this equation, this equation that is the integration that is given by IL, and V naught divided by R is the current through the resistor, right? So these are the cases, you just go through it, and these are the assumed solutions that we will just putting in for different cases. और बस ये वाली इन्फॉर्मेशन है जो कि बस इसमें देनी है, और ये एक इक्वेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपको मालूम है कि प्रीवियस जो सीरीज सर्किट था उसके अंदर भी एक इक्वेशन थी जिसकी मदद से हम डी आई बाई डी टी भी निकालते थे। अब यहाँ पे हम निकालेंगे डी वी बाई डी टी। ये देखें, ये डी वी बाई डी टी है इक्वेशन, इसको यहाँ पे उल्टे हाथ पे ले आए और ये इक्वेशन बन गई है। सो दिस इज द इक्वेशन 8.38 विच वी विल बी यूजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली फॉर पैरेलल सर्किट्स टू फाइंड आउट डी वी बाई डी टी। और इसको हम ऐसे समझ लेंगे, फॉर्मूले के तौर पे ही लेंगे और इसको जैसे इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या, वो प्रैक्टिस बताएगी आपको कि होगा क्या। बट द थिंग इज़ दैट एक डी बाई डी टी एट टाइम टी इक्वल टू 0 यहाँ से निकल आएगा। दूसरा लेट्स से कि हमारा सोल्यूशन एज्यूम सोल्यूशन ये है, तो हम इसको डी बाई डी टी अपने हाथ से कर सकते हैं द कंप्लीट सोल्यूशन, और फिर इसके अंदर टी 0 पुट करके इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी विल बी गोइंग फॉर फाइंडिंग आउट the constants A1 and A2 for all these three cases, that is underdamped, overdamped and critical damped. So इसी तरीके से हम A1 और A2 मालूम करेंगे। अच्छा, ये एग्जांपल 8.5 है और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि भाई आर की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ वेरी कर रही है। सो मैंने तो एक वैल्यू के साथ आपको सॉल्व करके दिखाना है इसको, बाकी वैल्यूज़ के साथ किताब में सॉल्व है। जस्ट यू जस्ट गो थ्रू इट सो दैट यू कैन हैव a clear idea of how to get the constants values for different cases. So in this solution of my own, I prefer to show you the solution by in my own handwriting. That gives me a bit more closeness and so otherwise if I just start explaining from the book, then that is something which is already there, you can understand it on your own. So this is the circuit. I have taken that the R is equal to 1.93, that is the case 1. Otherwise they have just taken 3 cases for these R value, but I will just solving for just single case, that is 1.923. अच्छा, अब क्या है कि initial conditions are already mentioned, you just go through it. That is, you see I0 is 0 and V0 is 5 volts. So initial conditions सारी दी हुई है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फा मालूम करना है 1/2 RC है, यहाँ से कैलकुलेट किया 2 से 26 आया, ओमेगा कैलकुलेट किया 1/LC से तो 10 आया। अल्फा इज़ ग्रेटर दैन ओमेगा, दैट मीन्स इट्स अ ओवरडैम केस। और हमारा जो सोल्यूशन की फॉर्म होगी वो रूट्स मालूम करने के बाद, रूट्स आ गए हैं S1 और S2 आ गए हैं -2 और -50 और दे ऑल आर नेगेटिव, दैट मीन्स दिस इज़ ओवरडैम्प्ड केस। और ये सोल्यूशन है ओवरडैम्प्ड का। हमने S1 की और S की वैल्यू यहाँ पे S1 और S2 की जगह पे रख दी है। अब हमने क्या करना है, टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने इसको मालूम कर लिया डी वी बाई डी टी एट टाइम t इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये क्या किया है मैंने, देखिए आपको बताऊँ, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लिया। ये हमारा सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन था प्रोपोज सोल्यूशन, इसको हमने यहाँ पे डेरिवेट कर लिया है। तो डेरिवेशन करने के बाद ये सूरत आ गई है और टाइम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर टाइम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अभी ये सिंपल डेरिवेशन है विद t, बट वी विल बी पुटिंग टाइम t इक्वल टू 0। तो ये टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ पे हमने पुट कर दिया। सो दैट्स हाउ this becomes -2 A1 plus -50 A2। और वो जो इक्वेशन मैंने आपको दिखाई थी 8.38, उसकी मदद से हमने डेरिवेटिव ऑफ टाइम t इक्वल टू 0 पहले भी निकाल दिया हुआ है। तो इसको पुट कर देंगे ऊपर वाली चीज़ को, इसको हम पुट कर देंगे -2A, दिस इज -2A -50 A2 इज इक्वल टू -26। और एक इक्वेशन ये वाली, और दूसरी इक्वेशन वो जो हमने V0 की वैल्यू पुट की थी
यहाँ पर सबसे शुरू में, आई होप कि ये आपकी स्क्रॉलिंग जो है इतनी बुरी नहीं लग रही होगी, ये वाला, तो ये वाली इक्वेशन आ गई है बाई जस्ट पुटिंग v0, फिर डेरिवेट किया था हमने, तो ए दैट इज़ 5 इज इक्वल टू a1 प्लस a2। तो इन दो इक्वेशन को हमने कैलकुलेटर में डाला तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू आएगी, दैट आई हैव जस्ट इंक्लूडेड इन द फाइनल रिस्पॉन्स। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास, राइट। तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब प्रॉब्लम हमारा है कौन सा, 8.6 मैं आपको दिखाता हूँ बुक में से, और फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा इसका। अच्छा, मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम कम लगे, अदरवाइज़ अगर आप इसको अपने पार्ट पे सॉल्व करना शुरू कर देंगे, एग्जाम्पल प्रॉब्लम तो सॉल्व है, ये देखें 8.6 सॉल्व है, ये इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने अपने हार्ट से प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किया और फिर आपके पास आंसर्स नहीं आ रहे एंड यू आर नॉट गेटिंग द राइट आंसर्स एंड द आंसर्स आर नॉट मैचिंग, सो यू माइट गेट स्टक कि भाई कहाँ पे गलती करें, एंड दैट कैन जस्ट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट कैन जस्ट टेक आवर्स टू मैच द रिजल्ट्स। And definitely I understand that you have a very so many courses load, and it's a Ramzan, so you don't have enough time for practicing. Even if you just take out 2 hours a day for this 1 hour of lecture, 1 hour of lecture means that just 20 minutes, so that is also be a very big ask, looking at the time period we are going through and the load of the courses you are in under the load. So मैं ये समझता हूँ कि आपको मैं ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम अगर सॉल्व करके दे दूँ और आप इसको सिर्फ देख कर अपने हाथ से भी कर लें, तो यू विल गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, एंड बिकॉज दीज अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वाइटल। अब इसके लिए और कोई टाइम आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सवाल है इसका, ये आपका सर्किट दिया हुआ है, सर्किट का जो है स्विच ऑन हो रहा है, तो आई विल जस्ट शो यू इन द बुक। ये टाइम t इक्वल टू 0 पर सर्किट स्विच ऑन होगा, इससे पहले इसका मतलब है कि क्या सर्किट होगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा टाइम t लेस देन 0 पे, और कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा। हो हम मालूम कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा मेन वेरिएबल है VC, तो VC मालूम चल जाएगा, तो VC इज़ गोइंग टू बी 4.5, और नहीं क्या बात कर रहे हैं कि ये तो शॉर्ट सर्किट है, तो VC इज़ 0, और सारा का सारा करंट इसमें से गुजर जाएगा, इसमें से सॉरी इंडक्टर में से, तो 4.5 हो जाएगा। ये 4.5 इज द करंट सोर्स सप्लाई, and this inductor is considered to be a short circuit for stable condition, so that's why this 4.5 ampere is going to pass through this okay inductor, and V naught is going to be 0 because this is across parallel to the short circuit, and anything that is parallel to the short circuit is going to have a 0 voltage across itself, राइट। सो अल्फा इज़ 1/2 RC, अल्फा मालूम कर लिया हमने, ओमेगा मालूम कर लिया, और हमें पता चला अल्फा इज़ ग्रेटर दैन ओमेगा। जब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको अपने हाथ से सॉल्व करना होता है, तो इसका मतलब है कि ये सारे स्टेप्स आपने वेरीफाई करने हैं, और ये आपने कॉपी पे लिखना है, और वैल्यू 6.25 और ये वैल्यू 5 आपने हाथ से निकालनी है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आप नहीं सॉल्व करने हैं। इफ़ माई प्रैक्टिस इज़ नॉट गुड दैन दैट इज़ एक्सेप्टेबल, बट इफ़ योर प्रैक्टिस इज़ नॉट गुड दैन डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व the numericals, the problems in specified time. So ये चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आपको और कभी वक्त नहीं मिलेगा, और अभी हम ये कोर्स गो थ्रू कर रहे हैं, और अल्लाह हमारी मदद फरमाए। अच्छा, तो अब हमें पता चल गया कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ओमेगा, दैट्स वाई द सोल्यूशन इज़ गोइंग टू बी ओवरडैम्प्ड। तो हमने ओवरडैम्प का यहाँ पर रिस्पॉन्स पुट किया, S1 और S2 को मालूम करने के लिए यहाँ से कैलकुलेशन करके S1 S2 मालूम कर लिया, और ये प्रपोज सोल्यूशन हमने यहाँ पर पुट इन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देंगे V नॉट की 0, V नॉट की वैल्यू पुट कर दिया V0, तो ये हो गया 0, और इसलिए इधर था e⁻⁻t, तो वो 0 पुट कर दिया, तो वहाँ पे वो सारा 1 हो गया। एनीथिंग दैट इज रेज टू द 0 इज इक्वल टू 1, तो e क्या जो टर्म थी वो गायब हो गई, a1 इज इक्वल टू -a2 आ गया है। अच्छा, फिर हमें डेरिवेटिव मालूम करना है, तो डेरिवेटिव हमने ये वाली इक्वेशन से मालूम किया है, 8.38 है, आई गेस हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल किया है, तो ये 8.38 हो जाएगा, और यहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू 8.38 से डेरिवेटिव की वैल्यू इनिशियल कंडीशन देते हुए हमें नज़र आ जाएगी, दैट इज़ 1125। अच्छा, ये 1125 यहाँ पे हमने जब पुट कर दिया, ओके, तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ से हमने a0 a2 टाइम t इक्वल टू 0 पुट कर दिया डेरिवेटिव में। ये डेरिवेटिव हमने कहाँ लिया है, ये डेरिवेटिव हमने कहीं लिया है ऊपर,
मैं आपको दिखाता हूँ डेरिवेटिव हमने कहाँ लिया है। ये डेरिवेटिव कहीं तो किया होगा ना हमने, वीटी डेरिवेटिव नहीं किया, कहाँ किया डेरिवेटिव? अच्छा, तो ये डेरिवेटिव नहीं किया हमने, तो ये डेरिवेटिव यहीं पर किया हुआ है, और ये इक्वेशन भी हमने ज़ीरो पुट कर दिया है, डायरेक्ट में डेरिवेटिव लेकर डायरेक्ट ज़ीरो पे पुट कर दिया है। तो ये वाली एक इक्वेशन आ गई है, और यहाँ पे हमने इस वैल्यू को पुट इन कर दिया है यहाँ पे। अब एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ऊपर से टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वी नॉट की वैल्यू पुट करने से इक्वेशन आई थी, और इसको कैलकुलेटर में डाला, ये दो वैल्यूज़ आ गई, a1 इज इक्वल टू दिस है और a2 इज इक्वल टू दिस, राइट। तो वी टी इज इक्वल टू 150 कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई है। तो A2 A1, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूँ, ये A1.09 क्यों आ रहा है, इसको मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या गलती है, क्या बाद में कुछ मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ, अभी सॉल्व करें। एक इक्वेशन ये सॉल्व करनी है, और एक इक्वेशन कौन सी सॉल्व करनी है, वो ऊपर जाके, ये एक इक्वेशन ये वाली, और एक इक्वेशन ये वाली, राइट। ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। इससे आपके पास a1 माइनस A2 है, तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन में ये देखें a1 माइनस A2 आ रहा है, दैट इज 1 माइनस 50 एंड 150 आ गया है ये। तो ये इसका सोल्यूशन है। आई होप दैट दिस वाज, ये थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, ये मैंने क्या स्टेप लिख दिया आई डोंट नो, लेकिन अभी मैं वीडियो को होल्ड नहीं कर सकता। तो ये आपने खुद सॉल्व करके ये 150 और ये 150 लेकर आना है। मुझे लग रहा है कि ये मैंने कुछ स्टेप्स किए थे, आंसर गलत आ रहा था कैलकुलेटर में, फिर मैंने सही कैलकुलेटर में से कॉपी डाउन नहीं किया और यहीं पे कॉपी डाउन कर दिया राइट आंसर। तो ये आप ला के देखिएगा, कैलकुलेटर में ज़रूर सॉल्व करके देखिएगा, 150 और माइनस 150 आएगा। तो दिस इज़ इनफ फॉर दिस 16 लेक्चर, एंड और हमारे पास 17 मिनट हो गए, तो दिस इज़ अ गुड टाइम। मीन्स यही हमने लिमिट रखी हुई है, 20 मिनट्स के अंदर होनी चाहिए। ओके, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।